what are the defects, how much tax revenue is collected every year, and what are the solutions. So there are two types of taxes, direct tax and indirect tax. Direct tax, the basic definition is, most of the commerce students would have known, that the burden of tax lies on the person on whom tax is levied. Like direct tax, income tax. I am earning the income and I am paying the tax directly to the government. The burden of tax and the taxpayer, both are the same. While in indirect tax, burden of tax does not lie on the person on whom tax is levied. For example, I am going to buy a good, like I am going to buy a biscuit from shopkeeper. I am paying rupees 10. Tax is included in it, but I am not paying it to the government. The shopkeeper will pay it to the government for me. So this is indirect tax. Burden of tax does not lie on the person on whom tax is levied. Actually burden तो है but पे करने का उसका duty, the duty of paying is not on the person. Burden falls on आपस में मत करो बात please. Yes. So direct tax is progressive in nature. What is meant by progressive in nature? It means that more the income, more the tax. Lesser the income, lesser the tax. For example, if I fall in a tax if my annual income is less than rupees 3 lakh according to new tax regime, then I am exempted from income. If my income is between 3 lakh to 6 lakh, I have to pay 5% tax. And as my income increases from 6 lakh to 9 lakh to more than 9 lakh, the tax rate increases. It is progressive in nature. While the indirect tax, it is regressive in nature. The same tax has to be paid by everyone irrespective of the income. For example, if I want to buy a pen, or a child from low income family wants to buy a pen, the price for the pen is same. So major direct tax in India is income tax, and major indirect tax is GST. Earlier there were many taxes like excise, custom, VAT, but everything is merged under one, GST. So net collection of direct taxes in financial year 22-23 is 16.61 lakh crore, and indirect taxes 13.82 lakh crore. The direct taxes almost it is half. Half is direct tax, half is indirect tax. That would be the major flaw we'll see. The composition of tax revenue. So we can see the major share of tax is from corporate tax, this blue part. Then income tax from individuals. These are both the direct taxes, the yellow and blue part. And rest of these are indirect taxes. Custom duty, excise duty, service tax, GST. So what is GST? GST is the goods and services tax levied on goods and services. Whatever we consume, whatever service we pursue, we have to pay tax on everything. The ultimate burden of tax lies on the consumer of goods and services, whereas payment of GST to the government is done by the seller. As I told you the example of a biscuit, we are paying the tax. The ultimate burden is on us. The seller will pay to the government, but ultimately he will take that tax from the consumer. These are the tax slabs of GST: 5%, 12, 18 and 28%, and different commodities are fall under different tax slabs. CGST is the tax revenue which goes to the central government. SGST, the tax which goes to the state government. So as I already discussed, this GST is regressive in nature. The same GST is for everyone to buy goods irrespective of the income of the person. For example, bike bought by a Zomato wala and MS Dhoni. Now a Zomato wala will buy a bike for his need. It is his source of income. But MS Dhoni, he is fond of, he is fascinated about bikes. So, but they both are paying the same GST.
There is no difference. Income tax. Now, income tax is levied on persons, HUFs, firms, companies, AOPs, local authorities. Everybody who earns some income has to pay income tax. So, following incomes are taxable. If we are earning a salary or profit from business, income from any house property that we hold, any capital gain that we earn during the year, like from sale of a property or sale of a huge asset or other sources. So let us look at the data. Current population of India is 142 crore around. 7.4 crore, only 7.4 crore people filed income tax return in financial year 22-23, out of which 5.16 crore people had no tax liability. It means out of 7.4 crore people, 5.16 crore people were exempted from tax. Actual taxpayers were only 2.24 crore. That is a very small amount. That is why we call the taxpayers the minority of India. 1.6% of total population of India pay income tax. Tax base is very small. Rank of India in number of taxpayers is 116th. You can note down this data. This is very important. In population, we are number 1. In terms of rank, in number of taxpayers, 116. और ये जो एक्चुअल टैक्स पेयर इनका भी ब्रेकअप है आगे, जो 2.24 में से कितने 10 लाख से ऊपर कहते हैं कि हमारी इनकम 10 लाख से ऊपर है, कितनों की कम है, वो है आगे डट नहीं करते, वो ब्लैक सा होता है ना, गोल सा रिमोट टाइप का था। हाँ So actually mention नहीं किया वो। चलो कोई नहीं, मिलेगा, सब मिलता है, सब मेंशन PPT में mention नहीं है। This is the data from as we all know, 1991 is the year of taxation reforms, economic reforms in India. So also the year of taxation reforms. So in this year, the tax revenue of India increased. It was over 50,000 crore. It crossed 50,000 crore. And then 98 to 99, it crossed 1 lakh crore. 2010 to 11, it was more than 50 lakh crore. 2016-17, more than 10 lakh crore. And now currently 22-23, it is around 30 lakh 43,000 crores. So we can see tax revenue is increasing. Now what are the major flaws of Indian taxation system? The unprivileged minority of India. As the PPT that Chetan discussed, the reservation caste system, the minorities of India. Only around, लिख लो figure, financial year 2022 की 21 की आई है सामने. The taxpayers in India who declared that their income is about 10 lakh per annum, thank you, were just 81 lakhs. Up to 10 lakh or more than 10 lakh? About 10 lakh. About 10 लाख पे कुछ मोटा टैक्स बनेगा ना, 5-6 तक तो वैसे एग्जम्प्टेड है, फिर 2 लाख आप वैसे एग्जम्पशंस ले लेते हो, तो बचा क्या, 3 लाख पे क्या टैक्स बनेगा. जो मेजर टैक्स पेयर्स हैं, दे आर जस्ट 81 lakh people in such a big country of 142 crore say that they have an income of 10 lakh and above. और इसमें से 81 से यहाँ नहीं लिखा हुआ, what I remember is around 80% people are salaried. तो अगर उसको निकाल दो तो only 15-20 lakh people who are not salaried, they declare that their income is about 10 lakhs. So such a huge tax evasion is taking place in the country. खत्म. नहीं मैंने इतना लिखा हुआ है.
Yeah. So now we look at the major flaws of Indian taxation system. The taxpayers are called the unprivileged minority of India. Why? The taxpayers, now there is one theory, nice brother theory. For example, there are two sons in a family. One is a nice one and one is the bad one. The nice brother is the breadwinner of the family. He does all the hard work, all pressure of work lies on him. And the bad brother only eats what is earned by nice brother, no burden of work on him. Now what if the nice brother who pays for everything is denied sleeping in a room with AC? What if he is charged extra for the food he deserves? He is abused by the family members. He is not allowed to sit on the dining table. So this is the situation of taxpayer in India. He is the nice brother who is paying the tax, on whose revenue the poor people, the non-taxpayers are being fed. He is devoid of all facilities he deserves, and instead his money is used to distribute food, free electricity, and other amenities to the poor people of country. Any doubt? Indian taxpayer is frustrated because he has to face corruption. He is treated like a beggar by the government officials. He is afraid of police and runs away. There are no reservations for the taxpayers. Write down another figure, very important. Quote it somewhere. 2,25,000 people. 2,25,000 people have given up citizen of India in last 3 years, which is the highest over a very long period of time. And I suspect 99% of these would be higher income taxpayers. They feel क्या करना है इंडिया में टैक्स देना है, इसकी बजाय हम कनाडा जाके ऑस्ट्रेलिया जाके कहीं पे अपना बिजनेस ले जाके वहाँ 30% 40% टैक्स देंगे, हमारे बच्चों का केयर होगा, एजुकेशन सस्ती मिलेगी, लॉ एंड ऑर्डर ठीक होगा, रोड्स ठीक होगी, हमें अलाउंसेस मिलेंगे, पेंशन्स मिलेंगी, एटसेट्रा एटसेट्रा. 2,25,000 people have given up their citizenship in last 3 years, highest number of citizens. Sir, but Canada में 4 lakh से above citizens ने last year they've given up their citizenship. हम अपने कंट्री की बात कर रहे हैं ना, इंडिया को छोड़ के जाने वाले की बात कर रहे हैं. कनाडा वाले छोड़ के जाएंगे यूएसए मोस्टली नियर बाय. So that is a different ball game. They are going from an advanced country to another advanced country. Or Canadian can go to UK also, other places. So India वाला जो गया है, मेरे को जो लगता है उसमें ज़्यादातर टैक्स पेयर हो. चलो Students भी तो होंगे. नहीं, ज़्यादातर मेरे को जो लगता है जो ये है, ये बिजनेस कम्युनिटी है, जो people who have given up their citizenship. 3 साल का डाटा, it's big data. Yes, students may be also there. The next flaw is regressive taxes. As we all saw that 50% of the tax. This is 2022 only. एक साल में 2022 में 2,25,000 भारतीयों ने छोड़ी नागरिकता. 2022. It could have effect of the COVID, how country mistreated COVID, how people died, how healthcare infrastructure was exposed, and even well-off people died because there was no healthcare available. So could be that is a reason. Could be government people think अगर हमने टैक्स ही देना है, डिमोनेटाइजेशन के बाद पकड़े जा रहे हैं, रेड्स हो रही हैं, तो वो कहते हैं हम वहाँ जाके दे देंगे टैक्स. This is what I hear from people. और 2.1 साल में 2,25,000 is a big number. करिए. और वही जाता है नॉर्मली जो वेल्दी होता है, वेल्थ भी लेके जाता है, टैक्स आगे जो देना होता है वो भी लेके जाता है. So it's a loss to the government. चलो. The next flaw is regressive taxes. As we all saw that 50% of taxes are regressive taxes. Regressive taxes, it means this is a major hindrance of economic growth as poor are left with little money to save and invest in the economy. The GST is charged by both to low income and middle income, high income families. The same GST is charged, but this is a hindrance in economic growth because the poor are already short of
money, and they are left with very little money to save and invest in the economy. That is why the poverty is still prevailing in India. So it ultimately leads to rise in the prices of goods due to unfavorable demand supply situation, also called inflation. Tax evasions. Now there are certain loopholes using which the people evade taxes. First is agriculture income is tax free. Now around 20% people engaged in agriculture are ultra rich. As sir also mentioned in previous classes that most of the farmers are marginal farmers, so there is no need of taking tax from them. They do not fall even under the tax slab. But there are around 20% people who are ultra rich, having bungalows, cars, sending their children abroad. So this is no fair to not to charge tax from a person who owns a BMW. So also some people do fraud by showing their non-agriculture income as agriculture income, and they also evade taxes. This is a major loophole. Next is international tax abuse. Now some companies operate in India, but they transfer their income to abroad where there are zero tax countries like Mauritius in order to avoid their tax liability. For example, they are working here, they are operating here, but they are going to trade, they are going to sell their products in countries like Mauritius and Singapore where there is zero tax. Free trade agreement with countries. India does free trade agreement with certain countries. It means no charging of import duty. Now it leads to destruction of tax revenues. 68,000 crore loss was suffered in the previous financial year. At the same time, when you have a free trade, you also export to that country without paying duty in that country. So that is another indirect advantage. So that is the advantage to your export boost. Exporters, they get a market, they don't have to pay. If there is a free trade agreement, whatever they send to India, we will not charge taxes. Whatever we send from India, our exporters will not pay duty there. So their products become competitive. So this is the game behind it. So इसको directly इसका अगर smartly किया जाए free trade agreement, तो it is beneficial. China wanted to do it with India, India denied it, and India rightly denied it. और जब free trade agreement किए जाते हैं, तो उसमें कुछ restricted items होती हैं. जैसे स्टील इंडिया का है, इंडिया का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होगा कुछ कंट्रीज के साथ, बट स्टील इज केप्ट आउट ऑफ इट, रिस्ट्रिक्टेड आइटम्स. कुछ मेडिसिन्स आर केप्ट आउट ऑफ इट. उनके ऊपर इंडिया कैन इम्पोज एज मच इम्पोर्ट ड्यूटी एज इट फील्स अप्रोप्रिएट टू सेव द डोमेस्टिक सेक्टर. अभी इंडिया में मेरे ख्याल से इस टाइम स्टील पे 15 या 20% इम्पोर्ट ड्यूटी लगाई थी इंडिया ने, क्योंकि चाइना डंप कर रहा था भयंकर क्वान्टिटी. तो इसको मतलब इट्स नॉट दैट स्ट्रॉन्ग लॉस बिकॉज इनडायरेक्टली यू गेन. These are some of the facts about tax evasion. Tax evasion by online gaming companies about 31,000 crore. 1.15 trillion fraud detected from GST invoices between 2018-19 and 22-23. 20,893 out of 69,426 GST identification number verified in last 2 months were non-existent. 14,302 crore of frauds. 5,716 crore recovered this financial year. 90% of GST revenue collection is from large corporations, because the small companies like MSMEs, they are already exempted. They enjoy certain exemptions and they do not have to pay taxes. India is losing over $10.3 billion, about 75,000 crore in taxes every year, owing to global tax abuse by MNCs and evasion by private individuals. एक फिगर नोट कर लो. फाइनेंशियल ईयर 2022-23 the income tax collected by the government was 9,60,764 crore, almost 10 lakh के आसपास हो गया. 9,60,764 crores financial year 2022-23. It was an increase of 24% over last year.
और मेरा अपना मानना है कि अप्रॉक्सीमेटली 8 लाख करोड़ गवर्नमेंट और कलेक्ट कर सकती है। 100% ग्रोथ के इसमें चांसेस हैं। इतना टैक्स आप खुद देख लो, 80 लाख पीपल डिक्लेयरिंग 10 लाख से अबव, उसमें से 90% आर सैलरी, तो रह क्या गए? सिर्फ 4-5 लाख जो नॉन सैलरीड है, बिजनेस वाले, उसे कि हमारी इनकम 10 लाख से ऊपर। इज दैट द केस? नो। सर इसमें एक और पॉइंट था, जो इंडिया में आई थिंक तो 53% पीपल इनकम टैक्स 47% इनकम टैक्स पे करते हैं, 53% जीएसटी पे करते हैं, जबकि बाकी कंट्रीज में मेजॉरिटी ऑफ पीपल इनकम टैक्स पे करते हैं। मतलब वहाँ इनकम पे टैक्स भी से गवर्नमेंट की इनकम ज्यादा होती है। agreed. That's what I am saying. India at present has the potential to earn 8 lakh crore more in terms of income tax, but people are evading. इतना बड़ा कंट्री है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, इतने बिजनेस हाउसेज हैं छोटे बड़े, उसमें से कितने सिर्फ 4 लाख बोल रहे हैं कि हमारे पास हमारी इनकम 10 लाख से ऊपर है नॉन सैलरीड, बाकी तो सैलरीड है, हु कैन नॉट हाइड इट। उनका तो फॉर्म 16 कंपनी ने काट के देना, सैलरी आपको काट के देगा, टीडीएस सॉरी टैक्स काट के इनकम टैक्स आपको देंगे सैलरी, और वो उसके अगेंस्ट फॉर्म 16 देंगे। वो तो कर ही नहीं सकते चोरी, तो रह कितने गए? सिर्फ 4 लाख लोग इतनी बड़ी कंट्री में जो कहते हैं हमारी 10 लाख से अबव इनकम है। सो वेयर आर वी? देयर वुड बी करोड्स हु आर इन दैट ब्रैकेट ऑलरेडी। तभी इतनी गाड़ियाँ बिक रही हैं, तभी इतने हाई वैल्यू आइटम्स बिक रही हैं। अब इसी से रिलेटेड एक पॉइंट है, अब डिमोनेटाइजेशन पे आ जाते हैं। गवर्नमेंट डिड डिमोनेटाइजेशन, मेन पॉइंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर वाज हम काले धन को खत्म करना चाहते हैं, बट इट डिड नॉट हैपन। व्हाई? बिकॉज ही अनाउंस्ड एट 8, which was a wrong time. If he had to announce it, it should have been announced at 11 p.m. when the shops, jewelry shops, everything is closed and the counters are closed, transactions are closed, or even midnight. First thing, first floor, 8 बजे अनाउंस किया, 9 से 10 बजे ज्वेलरी शॉप पे रश लग गया, लोगों ने 5-5, 6-6, 8-8 करोड़ रुपया कैश दिया, उठा लिया गोल्ड। First big flaw. Secondly, the ink which they started putting, 40th day from implementation of demonetization, आप जाते थे लाइन में लगते थे, आप 4,000 8,000 कुछ रुपए अपने करेंसी कन्वर्ट करा सकते हो। सब कंपनी वालों ने अपने लेबर को बोला चलो भैया लाइन में लग जाओ, 8-8 10-10 बार चेंज कराओ अपना आधार, इधर दो, कभी एक्सिस में जाओ, कभी ICICI में जाओ, कभी HDFC में जाओ, कभी कहीं जाओ। लाइनें क्यों लगी रही? जिस दिन इंक लगी उसके अगले दिन लाइनें खत्म हो गई, क्योंकि द सेम पर्सन कैन नॉट गो एंड स्टैंड इन अनदर क्यू 4 times in a day. What is this? This is the government, लिख लो, government was reactive in the demonetization, government was not proactive. The move was good, move was chemotherapy move. 8 लाख करोड़ is not a small amount. 8 लाख करोड़ लेके सारे इंडिया के डिस्ट्रिक्ट्स में पीजीआई जैसे हॉस्पिटल बना सकती है गवर्नमेंट। कितने सारे लुधियाना जैसे शहर में शहीद सुखदेव जैसे, SRCC जैसे कॉलेजेस खुले, क्यों जाए हम लुधियाना छोड़ के? क्यों जाए हम पढ़ने आइम्स में? यहाँ क्यों नहीं SP जाना आएगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। एवरी स्टेट शुड हैव वेरी गुड हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। मेडिकल सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। प्रिवेंटेबल हेल्थ, जो मैंने डेथ्स आप देखोगे किसी ने हेल्थ का लिया हुआ है टॉपिक, उसमें आएगा प्रिवेंटेबल डेथ्स इंडिया में 2 लाख से भी ऊपर हैं एवरी ईयर। डायरिया, लूज मोशंस एटसेट्रा एटसेट्रा, जिनको हम रोक सकते हैं। डेथ, डायबिटीज़ के रिलेटेड, मिस हैंडलिंग ऑफ डायबिटीज़ अप डाउन, ये सब प्रिवेंट हो सकती हैं डेथ्स। कहाँ हो रही हैं? नहीं हो रही, जा रहे हैं लोग, somebody's brother sister is dying, डेंगू, चिकनगुनिया, ये वो ब्ला 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 ब्ला। तो कितना वो 8 लाख करोड़ से कितना कुछ कर सकती है गवर्नमेंट। सो सेकंड फ्लोर इंक लगाई 40th डे, तब तक लोगों ने भैया यहाँ से हायर करके 1000 रुपये दिहाड़ी जो 600 रुपये मिलती थी, उनको कहा हाँ भैया ये तुम्हारा आधार कार्ड है, ये लो हमारे 4-4 बारी पैसे घुमा के देने। अपने वर्कर्स को लगा दिया इस काम में, और जिस दिन इंक लगी अगले दिन लाइंस वर गॉन, खत्म लाइन। जो इतनी 1-2 किलोमीटर लंबी लाइन थी वो जीरो हो गई। तो ये काम आप पहले दिन से क्यों नहीं किए? बिकॉज यू डिड नॉट सी थ्रू इट।
you did not think through it. If I were the Prime Minister, मैंने ही ऐसा मूव करना होता, तो I would have called a dinner with Prime Minister in Delhi with all the RBI governors, deputy governors, all chairmen of the private banks, government bank. कुछ बताने की जरूरत नहीं मैं क्या करने वाला हूँ. I should have called them for a dinner in Delhi, a dinner with Prime Minister, special interaction with Prime Minister. सारे RBI governors, deputy governors, जितने CBI, RAW, Intelligence Bureau, everyone should be there. और फिर जैसे अनाउंस किया उसके बाद I sit along with 80 brains कि क्या पब्लिक गलत करेगी. CAs ला के रखो 10 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वहाँ बिठाओ मीटिंग में कि क्या गड़बड़ करेगी पब्लिक. ये गड़बड़ करेगी, लोगों से 20-20 बार रोज के कन्वर्ट करा लेगी पैसे. बैंक्स ने गड़बड़ की, एक ही आधार कार्ड पे ठक 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 जाली हमने नोट चेंज किए, दे दिए किसी को. ऑफर्स आती थी फ़ोन पे प्राइवेट बैंक्स की, सर आप 1 करोड़ रुपए अपना उधर से इधर शिफ्ट कर दो हमारे बैंक में, नाम नहीं लूँगा बैंक का, हमारे बैंक में 1 करोड़ ले आओ, हम आपका 20 लाख वाइट कर देंगे. मतलब 20 लाख आपको ओल्ड करेंसी नए में कन्वर्ट कर देंगे. इट वॉज यूज एज ए मार्केटिंग टूल बाय द बैंक्स. अब जिस दिन अनाउंस हुआ उसके तीसरे दिन बीजेपी का बहुत बड़ा लीडर है कर्नाटका में, वो 2,000 के नोट ऐसे उड़ा रहा था मैरिज में. अब ऑपोजिशन को तो अकल नहीं है कहाँ बीजेपी के कहाँ मार रहे हैं डंडा, इसलिए वो उल्लू के पट्टों की तरह मतलब मूर्खों वाली बातें. आपको कोर्ट ने समन किया है, आप ब्लैक बैंड लगा के पार्लियामेंट स्टॉल कर रहे हो नेशनल हेराल्ड केस में. कभी आपको किसी में सीबीआई ने समन कर लिया, ईडी ने समन कर लिया, तो आप बैंड लगा के गांधी जी के बाहर बैठे हो, अंदर फाड़ रहे हो, पार्लियामेंट स्टॉल कर रहे हो. एग्रीकल्चर बिल्स पे बिल फाड़ के फेंक रहे हो. आप अमेंडमेंट्स मूव करो, जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ आप वो बोलो पार्लियामेंट में, तो क्यों नहीं किसान आपको वोट देंगे अगली बार, क्यों नहीं पब्लिक आपको एज ए गुड ऑपोजिशन कंसिडर करेगी. डिमोनेटाइजेशन बेकार है बेकार है बेकार है, आप भी बोलते कि ये करो जी, सरकार को ये करना चाहिए था, नहीं किया. सो इंक वाला मुद्दा वेरी लेटली डन. और उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट लिख लो, 3 लाख शेल कंपनीज वर आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द डिमोनेटाइजेशन इनिशिएटिव. 6 months में 3 लाख शेल कंपनीज वर आइडेंटिफाइड एंड नोटिस वर सेंट टू देम. शेल कंपनी क्या होती है कि कंपनी एग्जिस्ट ही नहीं करती. मैं बड़े लीडर का नाम नहीं लूंगा, बीजेपी का काफ़ी एफिशिएंट टाइप लीडर माना जा रहा है, लोग उसको बहुत अच्छा कहते हैं, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं एक्सेट्रा. ही इज गुड इन हिज वर्क, बट ही हैड एट हिज रेजिडेंस वन प्लेस 28 शेल कंपनीज रजिस्टर्ड. उसका भी बहुत स्कैम उस टाइम उठा था. गए वहाँ चेक कर रहे हैं, रसोइये के नाम पे कंपनी, ड्राइवर के नाम पे कंपनी, डायरेक्टर बनाया हुआ उनको, और नकली इनवॉइसेस वो जनरेट करती हैं बिजनेसेस में. मतलब वो कंपनी का एक्चुअली बिजनेस कुछ नहीं होता, उन्होंने आपको इनवॉइस रेज की, आपने उधर मनी ट्रांसफर करी, आपका एक्सपेंस बुक हो गया, आपका इनकम टैक्स रिड्यूस हो गया बर्डन. दिस इज अ मैक्रो लेवल पिक्चर ऑफ शेल कंपनीज. 3 lakh shell companies were identified during demonetization drive. Notices were issued to them, but follow-up action, nothing. One word, nothing. अब जो डायरेक्टर एक नंबर होता है DIN, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर. अब जो उन कंपनी में डायरेक्टर थे 3 लाख शेल कंपनीज में, व्हाट एक्शन वाज टेकन ऑन देम? नथिंग. वर देयर डायरेक्टरशिप, डायरेक्टर नंबर्स स्क्रैप्ड? नथिंग. वर द कंपनी दे वर डीलिंग एक्टेड अपॉन? नथिंग. 20-20, 30-30 करोड़ की वो बिलिंग कर रहे थे, शेल नकली इनवॉइसेस दे रहे थे. अब जो कंपनी उनसे ले रही थी उनको भी लपेटो. दिस वाज व्हाट वाज द फॉलो अप एक्शन नीडेड अगर आपने वो 8 लाख करोड़ निकालना था लोगों से. तो नथिंग डन. तो the real benefit of demonetization which was supposed to come out did not come out the way it should have. Government was reactive, not proactive. 8 बजे करने का कोई मतलब नहीं था. 8 बजे करके फिर आप जा रहे हो जापान, फ्लाइट लिए, अपने 10-15-40 सूट स्वाट इकट्ठे किए, चलो जी वहाँ जाके ड्रम बजा रहे हो आप, कंट्री को इमरजेंसी ब्रेक पे लगा के. Demonetization is not a very easy thing, not a good thing. It put the whole country on emergency break. सारे ट्रक रुक गए, हाई कहाँ से कैसे पैसे देंगे वो वहाँ पे टोल प्लाजा. फिर आपने दूसरे तीसरे दिन बोला कि चलो 3 दिन के लिए माफ़ कर देते हैं,
टोल प्लाजा माफ, फिर लोगों की मैरिजेस थी उन्होंने कैसे करना है, फिर चौथे दिन निकाला कि चलो अगर किसी का मैरिज है कार्ड लेके ले लो, इतने लाख रुपए दे देंगे, दे देंगे। किसी की कंस्ट्रक्शन चल रही थी, माई हाउस वॉज अंडर कंस्ट्रक्शन, इट वॉज ए हैंड टू माउथ सिचुएशन, हाउ डू आई पे टू द लेबर, everything got stuck. And then who has made it stuck? He is in Japan playing drum. कंट्री जेटली जी के भरोसे छोड़ के चले गया फाइनेंस मिनिस्टर। देखा ना आप सब लोगों ने, ये 5-4 दिन के टूर पे प्रधानमंत्री जी चले गए, शाम को 8 बजे अनाउंस करके 2000 करोड़ का जहाज लेके चलो जी यार। उनको कोई पेन नहीं है कि गरीब को इसीलिए कहते हैं वोट लेनी है बस। असली पेन हो तो 2000 करोड़ का जहाज नहीं लूंगा। इफ आई एम द प्राइम मिनिस्टर आई विल नेवर बाय till my avoidable deaths are not taken care, till my average citizen does not earn at least 5-6 lakh rupees a year, sorry, I will not sit easily. The prime minister should not sit easily. Prime minister should be concerned. So he went away, इकोनॉमी में भी झटका लगा उसका। अब मनमोहन सिंह जी ने पार्लियामेंट में खड़े होकर बोला ये डिमोनेटाइजेशन के कारण 3% जीडीपी ग्रोथ गिर जाएगी। आई हैड स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्राडिक्टरी व्यूज टू हिम। ठीक है इकोनॉमी थोड़ी स्लो होगी, 3 नहीं 4-5% स्लो होगी, बट जो ब्लैक इकोनॉमी ऐड हुई थी उससे न्यूट्रलाइज होगी और 1-2% और जीडीपी में पॉजिटिव इम्पैक्ट ही आएगा। दिस यू गाइज नीड टू अंडरस्टैंड। Yes, there was a break, 1 or 2 months. Many small sector, cash वाले business धंधे थोड़े रुके, but at the same time digital payments started. The things which were not coming on record started coming on record. हमारे यहाँ पे एक स्टूडेंट आता है, उसके पापा शेलर का काम था, कहते ऐसी आज तक जिंदगी कभी ले आई नहीं सी एक्साइज तब चलता था। एक्साइज रजिस्ट्रेशन ही नहीं कराई थी, हमने एक्साइज की रजिस्ट्रेशन कराई, अपने किसानों को चेक से पेमेंट करी, चेक से हमने पैसे लिए गवर्नमेंट से, अब हमारे खाते में आ गया, तो वो इनकम में कहीं ना कहीं सर्कल में आ गए। ऐसे बहुत सारे लोगों ने रजिस्टर किया, देयर हु केम इनटू द जीडीपी कैलकुलेशन, हु वर नॉट अर्लियर देयर। जीएसटी में भी यही हुआ, अब हमारा जीएसटी लग गई, अब हमारा जो सप्लायर था पेंटिंग वाला लीफलेट बना के देता, मैंने कहा भाई अगर तू मुझे जीएसटी बिल नहीं देगा तो मैं जीएसटी उतना सा भी जो 7-8% भी कुछ क्लेम होता है एडजस्ट होता है वो नहीं कर सकता, या मैं उस एक्सपेंस को बुक ही नहीं कर सकता, नॉन जीएसटी एक्सपेंस को एक अमाउंट से ऊपर, तो आप ये बना के दो, मुझे बिल बना के दो। उसने फिर जीएसटी लिया, आगे उसने पीछे कहा कि मुझे चाहिए जीएसटी बिल, तो ऐसे जीएसटी की लाइन चली। डिमोनेटाइजेशन के मेन जो सबसे बड़े एडवांटेजेस हुए हैं वो एक नंबर यही हुआ कि जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन was taken seriously by at least 50% people of the country. क्योंकि लोगों को लगा मोदी है, इसने डिमोनेटाइजेशन करके ब्रेक लगा दी, पूरी कंट्री बंद कर दी, आज जीएसटी नहीं लूंगा मेरा धंधा बंद कर देगा, लॉक करा देगा, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यार जीएसटी नंबर लो फटाफट। जब जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट हुई 50-60% people came into the loop of GST because of the fear which got created through demonetization. Number one, biggest benefit of demonetization. Number two, many people who were not in the process of recording, who were not getting accounted, started getting accounted in the GDP. That was second big advantage. Thirdly, उस टाइम मेरे को ये याद है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल होनी ऑलमोस्ट 2 times बढ़ी थी, 3-4-5 करोड़ हुआ करती थी, सीधा 9 करोड़ पे गई थी अगले साल। सो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने वाले लोग डबल हो गए थे ऑलमोस्ट ओवर द नेक्स्ट ईयर पोस्ट डिमोनेटाइजेशन। लोगों ने कहा यार 4 लाख 5 लाख ही कर दो, फाइल तो करो, कल को आएगा फिर से तो 5 लाख का तो हम हिसाब दे पाएंगे, 5 तो कह पाएंगे हाँ हमारा 5 इधर है। और एक इनडायरेक्ट वेरी बिग बेनिफिट था डिमोनेटाइजेशन, लोगों की स्टक पेमेंट्स क्लियर हो गई बहुत सारी। दैट हैड ए वेरी पॉजिटिव इफेक्ट ऑन द इकोनॉमी, स्पेशली स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। बहुत सारों के पैसे फंसे हुए थे, 15 लाख 20 लाख 30 लाख 50 लाख, लोगों ने बुला के दिए, लो जी चक के ले जाओ। एवरीबडी वांटेड टू क्लियर देयर बुक्स, क्योंकि कैश पड़ा है, कैश दे नहीं सकते बैंक में जाके, यार तू इधर आ के कितने नहीं पेमेंट है, 100 बंदे की पेमेंट देनी, क्लियर कर दे यार, कैश दे दे कैश। सो दैट हैड ए पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमी।
बट नेगेटिव जो उसके रियल बेनिफिट आने थे वो आए। एंड नेगेटिव्स में सबसे बड़ा नेगेटिव ये है कि यू हैड गिवन ए मैसेज टू द होल वर्ल्ड that India is not in a position to enforce its taxation. Indian tax mechanism is so poor, flawed, weak that India can't enforce and can't implement its tax, collection mechanism in a proper way. तो ऐसा chemotherapy move करना पड़ा इंडिया को. One big negative of it. Secondly, स्लो डाउन 3, 4, 5, 6 महीने का तो आया ही था वेरियस सेक्टर्स में ग्रोथ पे एक बार ब्रेक लगी थी जीडीपी पे। और इसके रीजंस मैंने आपको बताया कि बैंक्स ने विंडो बना ली, चेक्स एंड बैलेंसेस थे नहीं। अगर आपने अनाउंस करना था मोदी जी, अगर मैं प्राइम मिनिस्टर होता तो मैं जैसे बताया कि रात को ही आप सवेरे 3 बजे तक बैठते, अगले दिन सब कुछ बैंकिंग ट्रांजेक्शंस ऑफ है, सैटरडे को फ्राइडे को अनाउंस करो आप रात को, जब अगले दिन सेकंड सैटरडे या फिर थर्ड अगला उसका ऑफ है या सेकंड या फोर्थ, आप फ्राइडे को रात को अनाउंस करो 11 बजे 12 बजे, उसके बाद मीटिंग करो क्या हमने करना है अगले 2 दिन। बैंक वाले ऐसे गड़बड़ करेंगे, मिल जाएंगे बैकडोर से दे देंगे पैसे, लाओ जी 5 लाख ले आओ मैं थोड़े बात कर देना, पब्लिक खड़ी है खत्म हो रही है, कैश खत्म हो गया, अभी नए नोट खत्म हो गए, जाओ जी, और पीछे से सब एडजस्टमेंट्स हो रही हैं। तो वो अनाउंस होना चाहिए था कि बैंक, कोई भी बैंक मैनेजर भले गवर्नमेंट का हो प्राइवेट का हो, अगर वो पकड़ा गया इस कुछ भी गड़बड़ करते हो उसको 20 साल की रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट मिलेगी। स्पेशल एक्ट उसी दिन वो कैबिनेट मीट करके ऑर्डिनेंस निकाल देते, डराना ही था, नहीं डराया, 40 दिन तक सब गफलेबाजी हो गई। इंक वाला था, इंक शुड भी जो भी जाएगा चेंज करने वो फिर 15 दिन तक नहीं चेंज कर पाएगा, यहाँ इंक लगी होगी तो बताएगा कि मैंने इसे यहाँ से इतने बजे कराया है, मैक्सिमम वो 2 बार करा सकता है, 2 बार 2 इंक लगा दो चलो। फिर जो शेल कंपनी वाला पॉइंट बताया आपको, 3 लाख शेल कंपनीज वर आइडेंटिफाइड, करोड्स ऑफ ट्रांजैक्शंस, फॉलो अप एक्शन आई हैव नॉट हर्ड एनीथिंग, डायरेक्ट डिन नंबर नॉट कैंसल्ड, कंपनी दे वर डीलिंग विद नॉट एक्टेड अपॉन। तो कहाँ से फिर क्या बेनिफिट हुआ, जिसको करना था काला धन वो तो आज फिर बन गया, 2000 में और आसानी से बन गया था। क्या लिखा? So now we look at the reason for people evading taxes so much. In India, tax rates are high, but tax base is less. The taxpayers do not get any recognition, prestige like other countries. For example, in Sri Lanka, honest taxpayers are given special services in police, custom department. Pakistan, airport launch access is given to the Very good. taxpayers. In These are Japan, the ways. in Japan, honest taxpayers can click pictures with their emperors. And in Europe, tax slabs are revised every year according to inflation. So no such things are done in India. As a result, what taxpayers do? Now, as Sir already discussed, Indian citizens' migration to foreign countries has increased tremendously. Every year, a majority of the population who are the future taxpayers migrate to other countries. The youth is after 12th, many children usually go to Canada or Australia for study and for higher purposes because they know that they will not get any recognition, any respect in their own country. So that is why they choose to go to other countries. So this is not because the taxes are low, but because taxpayers are provided with the required prestige, respect and facilities. For example, good medical facilities by government, education facilities for children, good infrastructure and law and order situation. Unlike India, where minority of taxpayers are treated like nothing, the other countries don't leave any chance to regard their taxpayers. That is why they live happily, even by paying high taxes. Now, as we know, the highest tax slab in India is only 30%, but in other countries, it is also up to 50 to 60%. But then also,
Indians choose to migrate to other countries because they know that whatever tax they are paying today is ultimately benefiting them. The government is providing them the required facilities, like if they are ill, they want to go to hospital. There are government hospitals which are providing the required facilities. All the technologies are there, but in India there is nothing. The government schools, in foreign countries, government schools are no less than private schools, but in India, the only poor choose to go to government schools because there is no appropriate infrastructure for them. There is no appropriate technology. Now, Very good. what can be the solutions? Very good. Give her a round of applause. Very good. Nice. The basic thing that government can do is reward the taxpayers, revise tax slabs, give due respect to the taxpayers. For example, if taxpayers can be given identity cards and given preference over others while utilizing any government facility. Trophies and medals can be given to the honest taxpayers at district, state and national level. I think I missed the कोई नहीं, कोई नहीं. information here. Akshay Kumar was awarded with a medal for paying the highest tax, individual tax. I forgot to write the amount. कोई बात नहीं. Now, all must be treated equally and basic facilities like education, medical, food infrastructure must be provided to all. These can be some of the solutions to increase the tax base of the country and stop the people from migrating to other countries. Thank you. Okay, back up. Demonetization was a stick. Government should use carrot and stick both. पहले carrot use करो. Demonetization का भी बैकग्राउंड में पहले गवर्नमेंट ने एड्स दी थी न्यूज़पेपर, इसमें टीवी में, कि आप एक स्कीम आई थी डेक्लरेशन, इनकम डेक्लरेशन स्कीम, कि आप 3-6 महीने ऐड आती थी कि आप अपने बच्चों को क्या देके जा रहे हो, शांति, पीस ऑफ माइंड या टाइम बॉम्ब जो एक्सप्लोड कर जाएगा कि आपने टैक्स एवेजन्स की हुई हैं, वो पकड़े जाएंगे, कल को उनके ऊपर रेट्स पड़ेंगी एक्सेट्रा. गवर्नमेंट केप्ट ऑन डूइंग दैट फॉर 6 months. और उससे जो मुझे याद है 40,000 सम करोड़ ओनली came to the government as declaration in the income scheme, income declaration scheme. 40,000 some crores की हमारा ये income है, ले लो टैक्स और हम क्लीन हो जाते हैं. तो then that was again a small window given, but government ने देखा कुछ नहीं हो रहा तो डंडा चला दिया, demonetization. तो स्टिक कैरेट सिर्फ ये नहीं था कि भाई वही बोला था 30-40% दो, अपना क्लियर कर लो. एक तो वो थोड़े टाइम में कुछ टैक्स बार भी कम करके दे सकते थे आप, 40 की बजाय 25-30 कुछ करते, 10% इंसेंटिव दिखता लोगों को, वो एक रीजन हो सकता था. देन अगेन कैरेट, दिस इज कैरेट. टैक्स पेयर सिंपल है, सीधा पूछते हैं लोग कि भाई आपा क्यों दिए जी, सानू की एक्स्ट्रा देते हैं, पुलिस स्टेशन टूटा हुआ, बात वो हमसे तमीज से करते नहीं, चोरी हो जाए गाड़ी 8 महीने क्या 10 महीने क्या 1 साल तक मिलती नहीं, इंश्योरेंस वाले तब तक पैसे नहीं देते जब तक क्लोज नहीं होता लूप कि गाड़ी मिल नहीं सकती. 3-4 महीने तक बंदा परेशान. लॉ एंड ऑर्डर, हेल्थ केयर सिस्टम, सिविल हॉस्पिटल देख चुके हो, कोविड में क्या हुआ हमने देख लिया. तो पब्लिक कहती है हम क्यों दें टैक्स ज़्यादा, भाई अपने पास पैसे बचा के रखो, जरूरत पड़ेगी अपने पैसे लगा के कुछ कर लेंगे. दिस इज व्हाट इज पब्लिक्स रिस्पॉन्स, व्हाई यू डोंट पे प्रॉपर्ली द टैक्सेस, and they are also not wrong at it. तो आपको क्या करना है गवर्नमेंट को, एटलीस्ट कुछ छोटे से, अभी उसमें आता है एक ही क्वेश्चन आता है जब हम ये कहेंगे कि उनको एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट दे दो एक्सेट्रा एक्सेट्रा. एक तो रिस्पेक्ट कार्ड होल्डर कंसेप्ट था, आई हैड रिटर्न टू गवर्नमेंट, वहाँ से प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से फिर फाइनेंस मिनिस्ट्री को एडवाइस भी हुआ था, न्यूज़ आई थी क्लिप पे कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस हैज एडवाइस मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस टू कम अप विद ए लिंकिंग ऑफ आधार कार्ड, पैन कार्ड with the income tax paid by the आधार कार्ड लिंक करना है, और उसके हिसाब से 4-5 कैटेगरीज बनानी है, ब्रॉन्ज कार्ड होल्डर, सिल्वर कार्ड होल्डर, गोल्ड कार्ड होल्डर, प्लेटिनम कार्ड होल्डर. रिस्पेक्ट टैक्स पेयर रिस्पेक्ट कार्ड बनाने चाहिए थे गवर्नमेंट को. इनिशिएट होता है काम मोदी जी का, बट उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन में कुछ नहीं.
benefits can be given according to income to like you said. small Like you respect. said 80 lakh, like you said 80 lakh people have above हाँ. 10 lakh. So this year 4.40 lakh passenger vehicles are sold. हाँ. Out of that 20 lakh were SUVs. So SUVs very good fact, very good, nice, very can be good, very bought by good, person who excellent, has good less than correlation. 10 lakh. This अगर आप So- कहीं जीडी में बोल गए Like या इंटरव्यू में बोल गए बस बात हो गई. That should be linked with Aadhaar card, so Definitely. they can be given benefits. At that time they buy some SUV or other government can इतना ना भी दो, सिंपल. अगर आप पोस्ट ऑफिस गए हो आधार कार्ड में मॉडिफिकेशन कराने, अगर आप प्लेटिनम कार्ड होल्डर हो, गोल्डन कार्ड होल्डर हो, आप जाओगे पोस्ट ऑफिसर के हेड पोस्ट ऑफिसर के ऑफिस में बैठोगे, आपका काम वो उसका सेक्रेटरीट करा के देगा. आपको 140 नंबर की लाइन में नहीं खड़े होना कि जाके सिर्फ ये पता लगाना जी आधार में ये मॉडिफाई करना, ये डेट है जी, फिर आना आप दोबारा शाम को आओ, ये लेके आओ एक्सेट्रा. आप पीजीआई गए हो, पीजीआई में नीचे एक लाइन होती है वो जनरल और पीजीआई स्टाफ. तो पीजीआई स्टाफ के साथ नीचे लिख दो रिस्पेक्ट कार्ड होल्डर. अब लोग कहेंगे डिस्क्रिमिनेशन होती है जी, ये होती है. डिस्क्रिमिनेशन तो ऑलरेडी है. वीवीआईपी के लिए एमपी के पास सीट्स होती हैं ट्रेन की कोटे की. वीवीआईपी के लिए अलग लाइन होती है, सिविल हॉस्पिटल उधर बेड फटाफट मिलता है उनको, उसमें पीजीआई में एमपी कोटा एक्सेट्रा. एक्स सर्विसमैन को हम दे रहे हैं ट्रेन में रिजर्वेशन और ये. तो टैक्स पेयर भी बेचारे को ले लो. डिस्क्रिमिनेशन तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, इट इज अ रिवॉर्ड. आपको कोई बोलेगा काउंटर करो, नॉट डिस्क्रिमिनेशन, इट इज रिवॉर्ड. तो लेट देयर बी 5 seats in the train which should be reserved for the different respect card holders. Platinum, gold, चिंगम खा रहे हो, फेंक के आ जाओ उसमें कमोड में थ्रू उसको फेंक के फ्लश इट आउट. Never do it in any class with any teacher. So where were we? हाँ, ट्रेन में कुछ सीट्स दे दो कोटा, 5 सीटें. लॉन्च का एक्सेस क्या आ जाएगा? सारे ये लुधियाना में एक रिस्पेक्ट कार्ड टैक्स, इनकम टैक्स रिस्पेक्ट कार्ड होल्डर लॉन्च. 50 एयरपोर्ट्स, 200 रेलवे स्टेशन पे बना दो, जहाँ जाके बंदा बैठे आराम से वेट करे सुबह. प्लेटिनम वाला वो होगा जो 1 करोड़ से ज़्यादा इंडिविजुअल टैक्स दे चुका, 50 लाख से ज़्यादा जो दे चुका उसको गोल्ड, फिर सिल्वर, फिर ये. और उसको उस कार्ड से कुछ प्रिविलेजेस दो, छोटी छोटी. इसमें कितना खर्चा आएगा? ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 30 करोड़. 200 एयरपोर्ट्स पे लॉन्च बनाने, 50 एयरपोर्ट्स और 200 रेलवे स्टेशन पे. इनकम टैक्स रिस्पेक्ट कार्ड होल्डर लॉन्च. आप अपना कार्ड दिखाओ, आराम से बैठो, खाओ पियो, कोल्ड ड्रिंक पियो, चाय पियो, पीपल ट्रीट यू वेल. स्मॉल थिंग. एंड 0 से 100 नंबर में प्रायोरिटी दे दो गाड़ी की रजिस्ट्रेशन. लोग यहाँ 20-20 लाख रुपया दे देते हैं, 1 नंबर चाहिए, बोली होती है उसकी ऑप्शन. जी आजकल तो जी 10 पहले 100 नंबर था जी, इनकम टैक्स वाले देने लग गए. अच्छा तू भी दे यार इनकम टैक्स पे कर, 50 लाख का दे दे इनकम टैक्स, सानू वो कार्ड चाहिए. पीपल विल पे. लिंक इट टू स्टेटस रिस्पेक्ट. अब जैसे ये बोला इन्होंने यहाँ पे, जैसे 26 जनवरी का प्रोग्राम है, तो टॉप 20 GST पेयर्स ऑफ लुधियाना, टॉप 20 इनकम टैक्स पेयर्स ऑफ लुधियाना शुड गेट द फर्स्ट रोज. बंदा अपनी फेसबुक पे फोटो लगाएगा, लोगों को शेयर करेगा, देखो यार मुझे रिस्पेक्ट मिली. There should be a dinner hosted in a 5-star hotel for them once in a year. A good get together. Good singer should be called. कौन करता है आज? कर रहा है कोई? This is carrot. सर जो इनकम कम कमाता है लेकिन ऑनेस्टली पे कर रहा है इनकम टैक्स, तो उसको तो ये बेनिफिट मिलेगी नहीं, क्योंकि उसको भी ब्रॉन्ज मिलेगा ना, ब्रॉन्ज में आएगा वो भी, उसको भी कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही. प्लेटिनम, गोल्ड, नीचे तक ब्रॉन्ज है. सबसे नीचे वाला है कुछ लाखों वाला भी 5 लाख तक कर चुका इंडिविजुअल, उसको भी मिलेगा. और उसको ये पता होगा कि अगले में मैं अभी 5 में हूँ, अगले 4-5 साल में मुझे 5 से ब्रॉन्ज से मैं आ जाऊँगा सिल्वर में, फिर सिल्वर से गोल्ड में, फिर ये, तो उसको कुछ तो बेनिफिट मिलेगा. हॉस्पिटल्स में जैसे मैं बताया OPD लाइन नॉर्मल लोगों की 150, इधर लिखा PGI स्टाफ के साथ लिख दो एंड रिस्पेक्ट कार्ड होल्डर्स. छोटी सी चीज़ है, 120 लंबों की लाइन में लगना पड़ता है OPD कार्ड बनवाने के लिए PGI. मुझे कई बार फील होता है कि मैं 50 लाख से ज़्यादा इनकम टैक्स पे कर चुका हूँ. वी आर इन लुधियाना, वी इन कोचिंग सेंटर वी आर द नंबर 1 टू पे GST.
1.5-2 करोड़ रुपए GST शुरू से अभी तक पे कर चुके हैं ऑनेस्टली, और कोई नहीं देता है आईलेट्स कुछ नहीं. So in spite of that, that infrastructure is made out of my paid money, and now I have to stand at 188th position for getting a OPD card made for my father. Then ऊपर जाके फिर लाइन है, फिर गेट के पास खड़े रहो, अगर आपका नाम आ गया निकल गया तो उसमें फाइल नीचे डाल देनी है 70वें रैंक पे. This is the health care what we get after paying due taxes. But क्योंकि रिसर्च उनकी अच्छी है, कॉम्पिटेंस है, तो we have to follow this, but it's unfair. But it मतलब एज ए टैक्स पेयर, ऑनेस्ट टैक्स पेयर, आई फेल्ट बैड कि भी मेरे सामने जितनी पब्लिक खड़ी है इनमें से हार्डली एक बंदे ने टैक्स दिया होगा. इंफ्रास्ट्रक्चर इज क्रिएटेड बिकॉज ऑफ माई मनी, बट आई हैव टू नाउ स्टैंड एट 180th एंड देन मूव. सो दैट इज नॉट यू नो इनकरेजिंग. सब जगह ना करो, कुछ कुछ छोटी छोटी चीज़ें दे दो जहाँ पहले कर रहे हो. ट्रेन में कोटा है, MP कोटा है, MLA कोटा है, स्टेशन मास्टर कोटा है, एक्स सर्विसमैन कोटा कई जगह होता है, आर्मी वालों के लिए होते हैं कुछ सीट्स. तो आप टैक्स पेयर को भी दे दो 5 सीटें तत्काल में, 5 ऐसे कार्ड नंबर डालो होएगा. कोई किसी का कार्ड ही मांगेगा तो अपना कार्ड नंबर दे के बुक कर दे, तो इट विल गिव ए पॉजिटिव थिंग टू द टैक्स पेयर. छोटी सी चीज़ है, कोई बड़ा खर्चा नहीं है. लॉन्च बनाना कोई बड़ा खर्चा नहीं है. टोल में एक अलग लाइन, यहाँ कम टोल, कहीं टोल माफ आपको क्योंकि आपने पैसा दिया हुआ है. प्लेटिनम को तो माफ करो कम से कम, मैं कहूँगा. मैं प्लेटिनम में नहीं हूँ, 1 करोड़ प्लस वाले को ही शुड बी हैविंग ए VIP जैसे है, ही शुड बी ट्रीटेड लाइक ए VIP. ही इज ए VIP. तो आपका पॉजिटिव इम्पैक्ट, पॉजिटिव चीज़ों से भी 8 लाख करोड़ आप और ले लोगे. कितना खर्च दोगे 5 स्टार ये सब करके? कुछ नहीं. जैसे आप 100 करोड़ 200 करोड़, बट आएगा क्या आपके पास गवर्नमेंट का? 8 लाख करोड़ हर साल. और किसके अब रेडी है प्रेजेंटेशन? आ जाओ शाबाश. गुड, गॉड ब्लेस. आपने वो वाला बहुत अच्छा किया है बैक करना, जो श्रीलंका पाकिस्तान जैसी कंट्री, वहाँ का भी एग्जांपल लेके आए. ये नहीं है कि कोई और कंट्री कर नहीं रही, श्रीलंका जैसी कंट्री भी कर रही. पाकिस्तान हम कितना उसको डाउन मानते हैं. इवन जब कोविड था ना, तो पाकिस्तान गवर्नमेंट ने लॉ बना दिया था कि जो रेंट है, प्रॉपर्टीज़ के रेंट, वो 50% से ज़्यादा नहीं ओनर ले सकता. छोटी सी कंट्री है, हम बोलते हैं टेररिस्तान, ये अंडर डेवलप्ड, हमारे से बहुत कम पीछे ये वो, बट दे वर आल्सो एबल टू अंडरस्टैंड. हमारे इंडिया में किसी ने नहीं किया, क्योंकि कांग्रेस के लीडरों की प्रॉपर्टी थी. यहाँ पंजाब में, वहाँ का पंजाब प्रोविंस में हुआ था. मैं नेट से सर्च किया, हमारे यहाँ ओनर्स पूरा ले रहे थे रेंट, 1.5 साल 2 साल बंद रहा. कोई गवर्नमेंट ने कुछ इनिशिएटिव किया ही नहीं. अच्छा, टैक्स पेयर जैसे एक एडवांटेज ऑफ, और जिसने जितना टैक्स पे किया था उसका वो 20% विदाउट कोलेटरल उसको लोन मिल सकता कोविड के टाइम. गवर्नमेंट ने बोला जिसकी 10 करोड़ की लिमिट है उसको हम 20% एक्स्ट्रा लिमिट दे देंगे, खुद गारंटी देके विदाउट कोलेटरल. उनको हेल्प की, MSME और लोगों को बोल दिया टपरी टुपरी वाले 2 लाख 5 लाख ये ले सकते हो तुम लोन गवर्नमेंट से, एटसेट्रा से. टैक्स पेयर को क्या दिया? ठेका. टैक्स पेयर को भी बोल देते हैं अगर तुम्हें ज़रूरत है, तुमने जितना टैक्स पे किया हुआ उसका 20% तक तुम लोन ले सकते हो विदाउट एनी कोलेटरल. आपको 3 दिन में लोन अप्रूव होगा प्राइवेट गवर्नमेंट बैंक से. किया? नहीं किया. वहाँ पे भी टैक्स पेयर नॉट एट ऑल इन कंसिडरेशन. कितने लोगों की जॉब गई थी, कितने लोगों के बिजनेस रुक गए थे. हमें भी, मेरे को भी उस टाइम लोन्स की जरूरत थी, नहीं मिल रहे थे लोन्स. हाउ टू रन द शो, इट वाज वेरी टफ. तो जो दिए हुए टैक्स के बावजूद अपने को कोई विंडो नहीं है. सारी विंडो वो बोलते हैं ये ले लो, ये टपरी वाले ले लेंगे, ले लें. ठीक है, उनके लिए ज़रूरी है, बट टैक्स पेयर भी तो देता है भाई पैसे, उसको भी दे देते हैं विंडो की. अगर चाहिए इंटरेस्ट दे के देंगे ना लोन. अगर तुमको लोन चाहिए तो जिसने इनकम टैक्स जितना दिया उसका 20-30% तक वो ले सकता है कोलेटरल फी. क्या कुछ नहीं ठेंगा. ईमानदारी का उत्सव, ये जो था डिमोनेटाइजेशन उत्सव में कुछ मिठाई भी मिलती है, जो ईमानदार होता है उसको कुछ नहीं.